دیارے حضرت ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے، دیارے حضرت ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی۔ صاحب کل بھی صوفی سنتوں کے ماننے والے تھے، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ اجمیر کی سرزمین پر سب سے بڑا صوفی اعظم آیا جسے ہم غریب نواز کہتے ہیں۔ غریب نواز کے ماننے والے ایک صوفی برحق جو ہمارے سامنے آئے جسے خواجہ قطب الدین کہتے ہیں۔ ایک اور سنت ظاہر ہوا جسے بابا فرید کہتے ہیں۔ ایک اور سنت آیا جسے نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ ایک اور سنت آیا جسے ہم شیخ علاء الحق بھنڈوی کہتے ہیں۔ ایک اور سنت آیا جسے ہم حضرت مخدوم حسام الحق مانک پوری کہتے ہیں۔ ایک اور سنت آیا جسے ہم محبوب رحمان ابو الغوث کرم دیوان کہتے ہیں۔ ہم صوفی سنتوں کو ماننے والے جو مسلمان ہیں کہ جس نے اس ہندوستان کو جو بنجر تھا، جو کاردار تھا، جو اپنے جھوٹے رسم و رواج پر عورتوں کو جلانا اور بچوں کو مار دینا اور درندگی کا پیغام دے رہا تھا، جب صوفی سنتوں نے اپنی کٹیا کو اس ہند کی دھرتی پر گاڑا اور نصب کیا تو ہر ایک کے دل میں بتایا کہ تیرے سینے میں پتھر نہیں بلکہ ایک پیار کرنے والا دل دھڑک رہا ہے۔ الحمد لله الذي أبدع الأعراض والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصباره أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك دائما أبدا أزليا يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ محترم سامعین، اسٹیج پہ تشریف فرما حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، آپ حضرات محفل میں بیٹھ کر ہلکی سی بھی اکتاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ محفل رسول ہے۔ اس کے لیے جس کے لیے اس محفل کے پاس و لحاظ کا احساس ہے، بے شک اور جو جیسے اس محفل کے ساتھ پیش آئے گا اس کو ویسے ہی اپنے سرے کا اور اپنے اجر کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ بے شک ہمارا بھی دستور بڑا عجیب ہے، ہم ساری رات سوتے رہتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، ہم مسجد ایک وقت بھی نہیں جاتے اور سوچتے یہ ہیں کہ اللہ اسے بخش سکتا ہے، وہ ملک الاملاک ہے، وہ ہر شے پر قادر مطلق ہے، وہ با اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، تو اس پر چاہے
जिस लड़के को पास कर दे बगैर एग्ज़ाम दिए हुए, ये उसकी मर्जी है, मगर उसूल, दस्तूर, निज़ाम और सिस्टम ये है कि पाबंदी के साथ उसकी बारगाह में हाज़िरी दी जाए। बेशक स्कूल में, क्लास में हाज़िरी दें, सिस्टम तो यही है। हज़रात मोहतरम, हम एक बहुत बड़े आलम में थे, आलम अरवाह में। अल्लाह ने इतने बड़े आलम से हमें भेजा, माँ के शिकम में एक छोटी सी दुनिया में, वहां से निकाला तो फिर इस दुनिया की रंगीनियों में और इस आलम में हमें लाकर रख दिया। कभी हमें हरियाली नजर आई, कभी फूलों का चटकना हमें नजर आया, कहीं आबशार के नगमे हमारे कानों तक पहुंच गए। तो ये इस आलम में हम आए। जरा आप गौर फरमाएं, जब हम आलम अरवाह में थे तो हमारी ग़िज़ा रब की तजल्ली थी। सुभान अल्लाह। जब हम माँ के शिकम में आए तो माँ का खून हमारे लिए ग़िज़ा बना दिया गया। सुभान अल्लाह। इन दोनों जगहों पर हमें मेहनत की जरूरत नहीं पेश आई, लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने फरमाया मेहनत कर और अपना रिस्क हासिल कर। लोग रिस्क के हुसूल में इस कदर सरगर्दा हुए, इस कदर मस्त हुए कि जिसने उसको भेजा उसी को फरामोश कर दिया और रिस्क को अपना माबूद बना लिया, रिस्क को अपना खुदा बना लिया। आप अंदाजा लगाएं, सारे जानवरों को देखें तो हर जानवर अपने लुक़मे की तरफ अपना हाथ न बढ़ाकर अपना सर झुका लेता है और उस रिस्क को खाकर कहता है कि हम वो मखलूक हैं कि हम रिस्क के सामने सर झुका लेते। लेकिन आप हजरत इंसान, जब आपके सामने रिस्क लाया जाए तो अल्लाह आपका सर नहीं झुकाता, बल्कि कहता है कि तू अपने हाथ को बढ़ा और उसे उठा और लुकमा बनाकर अपने लिए रिस्क बना ले और उसे खा ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और मखलूक की तरह तेरा भी सर झुक जाए। क्योंकि तेरा माबूद रिस्क नहीं है, तेरा माबूद खालिक़े अर्दो समा है, रब्बे जुल जलाल है। तेरा सर झुकेगा तो रिस्क के सामने नहीं, अल्लाह के सामने झुकेगा। अब आप तवज्जो देते चले जाए। बच्चे को गोद में लेना, गोद में, तो जब आप बोलेंगे तो वो आपकी जुबान पर गौर करेगा। जब आप उसे कहेंगे ये तुम्हारे अब्बा हैं, ये तुम्हारी माँ हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिखाएं कि ये तुम्हारे अब्बा हैं तो उनको अम्मा कह दे, या जिसको अम्मा सिखा रहे हैं उसको अब्बा कह दे। ऐसा नहीं होता। आप जो जो रिश्ता मुतारफ करवाते चले जा रहे हैं कि ये तुम्हारे फला रिश्तेदार, ये तुम्हारे फला रिश्तेदार, ये फला फला, अब वो बच्चा सीखता चला जा रहा है। पता ये चला कि हमारे अंदर अल्लाह ने एक फितरत रखी है। फितरत ये है कि जो तुम सिखाओगे वो बच्चा सीखता चला जाएगा। लेकिन आप गौर करें, जब 4 साल का वक्फा बीत जाता है तब बच्चे के सामने लाकर उसके हाथ में कलम दिया जाता है और कहा जाता है एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स से कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ शुरू करवा दे। बच्चा 4 साल के बाद लिखना शुरू करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये बाद में बताएं कि मैं तेरा वालिद और वो तेरी वालिदा, पहले आप ये बताएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उससे बगैर तू खा नहीं सकता, उनके बगैर रब को राजी कर नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। आपके इस खामोशी से हमें कोई एतराज नहीं है। हमें इस बात पर यकीन है कि आप खामोश रहकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि अपने अंदर अदब ले आए और बेअदबी खत्म करें, अपने अंदर इखलास और लिल्लाहियत ले आए, अल्लाह रसूल को पहचाने। अब आप देखें, गौर फरमाएं, तो रब तबारक व तआला ने जो निज़ाम बनाया है, आप घोड़े की नाक में लगाम लगा देते थे और घोड़ा लगाम में रहता है। कभी देखा है कि एक घोड़े को दूसरा घोड़ा लगाम लगाए?
कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने देखा है कि एक ऊंट की पीठ पर दूसरा ऊंट सवारी करे? नहीं, बल्कि एक ऊंट को अगर कोई काबू में करता है तो वो अक्ल वाला इंसान करता है। अगर घोड़े को लगाम में ले आता है तो एक अक्लमंद सी शऊर और खैरत वाला शख्स ले आता है। हर जानवर को कब्जे में इंसान रखे हुए है। अब जरा गौर करें, तवज्जो दे। इंसान है नफ्स वाला। इंसान क्या है? नफ्स वाला। वो अल्लाह रसूल को भूल गया है। तो अब इंसान को भी लगाम चाहिए या नहीं? चाहिए ना। तो अब इंसान को लगाम कौन लगाएगा? नफ्स वाला नहीं, वो लगाएगा लगाम जिसने नफ्स को कुचल दिया है, जिसने ख्वाहिश को तर्क कर दिया है, जिसने अल्लाह को राजी कर लिया है। अब वो लगाम लगाएगा, तब ये इंसान लगाम में रहेगा। आप देखें, किसी जानवर को बीच रास्ते में छोड़ दे, इधर भी खेत हो, इधर भी खेत हो, हर जानिब हरियाली हो, आप उसे छोड़ दें तो क्या वो जानवर अब उस खेत में मुंह मारे बगैर रह सकता है? आप कहें कि तेरे दाएं भी हरियाली है, तेरे बाएं भी हरियाली है, मगर तुझे खाना नहीं है, तुझे खाना नहीं है। वो जानवर कहेगा जब खाना नहीं है तो मुझे बीच में छोड़ा क्यों? मुझे बीच में छोड़ा क्यों? ऐसी जगह पे छोड़ते ही नहीं। तो आप देखते हैं और खुद करते भी हैं कि जब बैल को खेत में छोड़ा जाए तो मुंह में एक जाल लगा दी जाती है कि तू चलता रहे और सारी हरियाली महफूज रहे। अब तू कोई भी हरियाली और कोई भी खेत में तू अपना लुकमा तलाश नहीं कर सकता। जब वो इंसान जितना देगा उतना ही तू खा सकता है। इसी तरह इंसानी नफ्स के जानवर को भी एक जाल की जरूरत है, एक लगाम की जरूरत है, एक कंट्रोल की जरूरत है। तो उसी कंट्रोल और उसी जाल और उसी लगाम का नाम है मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। लोग कहते हैं अब क्या जरूरत है सुन्नत की? काफी पुराना दिन है, 1400-1500 साल बीत गया। अब मॉडर्न जमाना है, अब दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं, अब कुर्ता पैजामा हुजूर के लिबास की जरूरत नहीं। अब वो तरीक़े-ए-कार अब हमें नहीं चाहिए जो 1500 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा से नाफिज हुआ, जो कानून निकला। अब हमें उस इताअत और उस सुन्नत की जरूरत नहीं। आप कहेंगे ऐसा तो हम नहीं कहते, लेकिन आज के दौर में कुछ लोग हैं ऐसा कहते हैं। आप कहते नहीं हैं मगर करते भी तो नहीं। आप कहते नहीं मगर करते भी तो नहीं। अभी तहकीक की जाए, चंद ही लोग नमाजी मिलेंगे। अभी पूछा जाए, चंद ही लोग बाशरा मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते हैं हम आजाद हैं, बेलगाम घोड़े की तरह। नहीं दोस्तों, जब आलमे अरवाह में आप बेलगाम नहीं थे, जब माँ के शिकन में बेलगाम नहीं थे, तो इस दुनिया में कैसे बेलगाम हो सकते हैं? जब आप कब्र के अंदर बेलगाम ना हो सके, जब आप हश्र के मैदान में बेलगाम ना हो सके, किसी भी आलम में अल्लाह ने आपको आजाद नहीं छोड़ा, तो इस दुनिया में आजाद कोई कैसे रह सकता है? आप बच्चे थे, जवान हो गए, पता चल रहा है कि आप बेलगाम नहीं हैं, कोई तो है जो आपको चला रहा है। आप जवान थे, आप अधेड़ हो गए, पता चल रहा है ये उम्र जो बढ़ी है ये बता रही है कोई तो है जो आपके जिंदगी के निजाम को आगे बढ़ा रहा है। आप पहले कुछ और थे, अब बूढ़े हो गए, कोई इससे जाहिर हो रहा है कोई तो है जो हयात का निजाम दरवा और दवा किए हुए हैं। अब जिंदा थे, अब इंतकाल कर गए, कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है। हाँ, इस बीच के मराहिल में, बीच के रास्ते में बहुत सारे बहकाने वाले लोग आ जाएंगे, तो जो बहक जाएगा वो अपना बुरा करेगा और जो संभल जाएगा वो अपना भला करेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इब्लीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। और अल्लाह ने कहा तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा
اس سے پہلے میں نے سجدہ کیا ہے، اس کے بعد بھی سجدہ کرتا رہوں گا، مگر آج سجدہ نہیں کروں گا، آج سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ہاں اس کے بعد کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، آج اور ابھی اسی وقت تجھے آدم کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اگر تو نے سجدے سے انکار کیا تو پچھلے سارے سجدے تیرے برباد کر دیے جائیں گے اور آگے سجدہ کرنے کی تجھے توفیق نہیں دی جائے گی۔ پروردگار میں تجھے سجدہ کروں گا لیکن آج مت کروا۔ اس نے کہا سن، میں محتاج سجدہ نہیں، میں محتاج سجدہ نہیں، میں عبادت کروانے کا ضرورت مند نہیں، میں مستحق عبادت ہوں، میں لائق عبادت ہوں۔ تو سجدہ کر یا نہ کر، مجھے سجدہ کرنے والے بہت ہیں، جو مجھے سجدہ کرے گا اس کا بھلا ہوگا۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو سمجھتا ہے کہ میں محتاج سجدہ ہوں، مجھے سجدوں کی ضرورت ہے، اب قیامت آ جائے گی لیکن اب تجھے سجدے کی توفیق نہیں دی جائے گی، تو مر جائے گا لیکن سجدہ کرنے کی تجھے توفیق نہ ملے گی۔ کیا پتہ چلا؟ اب ذرا غور کریں، ہم نے کہا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، اور اب دیکھیں ذرا اندازہ لگا، چاند پر پہنچنے والا پہنچ کر کہہ رہا ہے یہ میری عقل ہے جس کے استعمال سے میں چاند پر پہنچ گیا۔ کھیتی کرنے والا اس سے پوچھو یہ جو ہریالی نظر آ رہی ہے تو وہ کہے گا یہ عقل کا دخل ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر یہ ہریالی سامنے نظر آ رہی ہے۔ موبائل بنانے والے سے پوچھو تو وہ کہے گا عقل کا استعمال کیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم نے وجود دیا ہے۔ اب مائک بنانے والے سے پوچھو تو وہ کہے گا عقل کا استعمال کیا ہے کہ یہاں کی آواز دور دراز تک پہنچ رہی ہے۔ ہر چیز بنانے والے سے پوچھو تو وہ کہے گا عقل کا استعمال کیا ہے، عقل کا استعمال کیا ہے۔ اللہ نے کہا عقل تیرے سر میں موجود ہے۔ کہاں پروردگار؟ عقل کا خالق بھی تو ہی ہے۔ زبان میں اگر گویائی نہیں ہوتی تو میں اللہ رسول کی بات آپ تک پہنچا نہیں پاتا، تو زبان بھی ہمارے اسی سر کے دائرے میں موجود ہے۔ زبان سے لوگ طرح طرح کے گانے گا رہے ہیں، زبان سے لوگ طرح طرح کا خطاب کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے بہتوں کے دلوں کو بدل دے رہے ہیں، زبان کے ذریعے عقیدہ صحیحہ کو چینج کر دے رہے ہیں۔ تو زبان میں طاقت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ نظر کا استعمال کرے، نظر سے نہ جانے کتنے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ قدم چل رہا ہے تو بتا رہا ہے نظر نہ ہوتی تو میں منزل تک پہنچ نہیں پاتا، یہ ہاتھ پکڑ کر بتا رہا ہے نظر نہ ہوتی تو میں غلط جگہ پہنچ جاتا۔ تو نظر ہے نا جو بہت کاموں کو انجام دے رہی ہے، تو نظر بھی سر میں موجود، کان بھی سر میں موجود، دماغ عقل بھی سر میں موجود، زبان بھی سر میں موجود۔ تو یہ مقدس ہوا یا نہیں؟ یہ مقدس ہوا یا نہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں سجدہ اسی کو کہوں گا جب تمہاری عقل میرے سامنے جھک جائے، جب تمہاری نظر میرے سامنے جھک جائے، جب تمہارا کان میرے سامنے جھک جائے، جب تمہاری گویائی زبان میرے سامنے جھک جائے۔ ارے عقل جس کو سجدہ کرے وہی تو لائق سجدہ ہے، نظر جس کے سامنے جھک جائے وہی تو مستحق عبادت ہے، زبان جس کے سامنے گر جائے وہی تو عبادت کا حقدار ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جھکا کر یہ بتا دیا اس کائنات میں جو اپنی عقلوں کو خالق مانتے ہیں، یاد رکھو، پوچھو اپنی اس عقل سے کہ یہ پہلے کہاں تھی، اس کو وجود کس نے دیا، تو یہ عقل بتائے گی کہ میرے رب نے دیا۔ زبان سے پوچھو یہ پہلے کہاں تھی، اس کو وجود کس نے دیا، تو زبان کہے گی میرے رب نے دیا۔ نظر سے پوچھو تو پہلے کہاں تھی، تجھے میرے اندر نظر بینائی کہاں سے ملی، تو میرے رب نے دیا۔ تو اس تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اللہ ہے۔ اچھا دیکھیں ایک بات اور، یہ بات مانے گا وہی جو ایمان والا ہو، جو ایمان والا ہوگا۔ بے ایمان وہ تو اپنی بے ایمانی میں مست ہیں، ان کو ان کی بے ایمانی مبارک ہو، لیکن صاحب آپ ایمان والے ہیں تو ذرا غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس کی اصلاح کریں۔
कि हम कहाँ से चले और कहाँ हमको जाना है। बीच में ये जो दारुल अमल है इसको हम खराब ना करें, इसे संभालें। इसको संभालने के लिए अल्लाह ने आपके हाथ में इख्तियार दिया है। कोशिश करें, मेहनत करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह की रज़ा आसानी से बंदों को नहीं मिलती, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कभी ये रज़ाए इलाही तुमसे कहेगी कि तुम बादशाह वक्त हो तो गरीबों के साथ इंसाफ करो। कभी ये रज़ाए इलाही तुमसे कहेगी कि अगर तुम सिद्दीक़ अकबर हो तो दीन के दुश्मनों से जंग करो। कभी ये रज़ाए इलाही तुमसे कहेगी कि अगर तुम उस्मान गनी हो तो कुरान की अज़मत पर अपनी शहादत पेश करो। कभी तुमसे ये रज़ाए इलाही कहेगी कि अगर तुम अली मुर्तज़ा हो तो दीन रज़ाए इलाही के लिए अपनी शहादत की कुर्बानी दो, अपनी जान को कुर्बान करो। तो रज़ाए इलाही कोई आसान चीज़ नहीं है, बड़ी मुश्किल चीज़ है। इसे हासिल करने के लिए आप कोशिश करते रहे। तो ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो। दो चीज़ें हैं, एक ईमान और एक तक़वा। बस मेरा बयान अब आखिरी मराहिल से गुजर रहा है, आप उसी हिसाब से तवज्जो के साथ सुने, फिर आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। जहाँ से आप आए हैं वहीं पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ कोई कैद बा मशक्क़त की सज़ा आपको नहीं सुनाई गई है। आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। लेकिन ये महफिल बड़ी मुक़द्दस है, ज़रा पूरे ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह। ज़ोर ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहरहाल हमें वही ज़ोर पैदा करना है, वही ज़ोर पैदा करना है। कहा ईमान और तक़वा। तक़वा किसे कहते हैं? ईमान दिल में होता है। ईमान कहाँ होता है? दिल में होता है। वो ऐसे इंसानी सूरत में नज़र नहीं आता, वो दिल में होता है। लेकिन जब दिल में होता है तो ज़ुबान हिलती है, तो उस ज़ुबान की जुम्बिश को तक़वा कहते हैं। ईमान दिल में हो, नज़र कुछ देखती है ईमानी नज़र से, तो उस देखने को तक़वा कहते हैं। ईमान दिल में हो, अक्ल कुछ सोचती है ईमानी सोच के साथ, तो उसे तक़वा कहते हैं। तो दिल में तो ईमान होता है, लेकिन इंसानी आज़ा से जो अमल वजूद में आता है उसे तक़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? तक़वा। अब ये दोनों चीज़ें अहम हैं। ईमान के बगैर तक़वा नहीं, ईमान के बगैर तक़वा नहीं। पहले ईमान है और बाद में तक़वा है। तो अब दो चीज़ें हैं। तो देखें, पुलसिरात से गुजरने के लिए ईमान और तक़वा काफ़ी है। हम पुलसिरात से गुजर जाएंगे कब? जब हमारे साथ ईमान और तक़वा होगा, तब हम जन्नत में जा सकते हैं। कैसे? जब ईमान और तक़वा होगा तब हम अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। कब? जब ईमान और तक़वा होगा तब। तो ईमान और तक़वा एक बंदे की कामयाबी के लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी कब है? जब ये दोनों बचे रहेंगे तब। दोनों अजीम चीज है, दोनों अजीम। कुरान पढ़ो इनके साथ तो सवाब मिलेगा। यतीम बच्चों की मदद करो इन दोनों के साथ तो सवाब मिलेगा। माँ बाप की खिदमत करो इन दोनों के साथ तो अल्लाह राजी हो जाएगा। तो ये दोनों तो अहम है। जब अहम है तो इनका बचाना भी जरूरी है। इन्हें हल्के में ले लेना, इन्हें टाइम पास समझ लेना, इन्हें चलते फिरते किसी के हाथ में दे देना, ये अक्लमंदी नहीं। इनकी हिफाजत भी जरूरी है। पुलसिरात से गुजरो और ये दोनों साथ में न रहे तो पुलसिरात से गुजर सकते हो नहीं, गिर जाओगे। अब निकलो किसी शहर के लिए कि हमें बॉम्बे जाना है या हमें किसी और शहर में जाना है और इतने पैसे की जरूरत है, हमने साथ में रख लिया, अब निकले तो वो पैसा बॉम्बे पहुंचा सकता है, काफी है। लेकिन कब? जब बचा रहे तब। आप निकले गाजीपुर में, आपका जेब साफ हो गया, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? तो अहम है बचाना। तो यही तो हम लोग कहते हैं कि बचाने की तदबीर, बचाने का तरीका
किसी मदरसे की चटाई से खींचकर आपको नहीं देंगे, बल्कि हम वही से देंगे जिसे रब का कलाम कहते हैं, जिसे रब का कलाम कहते हैं, जिस पर हर एक का इत्तिफाक है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो इस किताब से पूछो कि हम ईमान और तकवा को कैसे बचाएं। तो इसी आयत ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ईमान और तकवा बचाने के लिए वकूनू मअस-सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ, हो जाओ सच्चों के साथ। इस आयत की तरतीब पे जरा गौर करें। अगर आप कुरान पढ़े हुए हैं तो माशाअल्लाह और जल्दी समझ जाएं, लेकिन अगर आप यस्सरनल कुरान या बगदादी कायदा पढ़कर आपने छोड़ दिया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। कावकूनू, इसका तर्जमा है हो जाओ। ईमान वाले और तकवा वाले से ये कहा जा रहा है हो जाओ। ईमान वाले और तकवा वाले से ये कहा जा रहा है हो जाओ। क्या हो जाओ? कहा मां साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाए? किसी तंजीम के साथ, किसी तहरीक के साथ, किसी रियाली पावर के साथ, किसी हुकूमत के साथ, किसी सल्तनत के साथ, किसी साहिब इख्तिदार के साथ, किसके साथ हो जाए? कहा अस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाए, सच्चों के साथ। आप कहें ना, साथ होना बाद में पाया जाता, पहले हो जाना पाया जाता। इरादा, आपने कहा हमें वहाँ जाकर मिलाद सुनना है, तो आपने घर से इरादा बनाया तभी तो यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अगर इरादा नहीं बनाया होता तो यहाँ आकर इतनी देर तक वक्त नहीं देते। तो कहा हो जाओ, पहले दिल में ये इरादा ले आओ कि हम अबुल गौस गरम दीवान के साथ हो गए। पहले आप इरादा बना लें कि हम महबूब अशरफ के साथ हो गए। आपने इरादा बना लिया कि हम गरीब नवाज के साथ हो गए। हमने तमाम मकातिबे फिक्र और मज़ाहिब से पूछा कि ये जो आयत करीमा है कह रही है सच्चों के साथ हो जाओ, तो ये सच्चे कौन? एक साहब आए, उन्होंने कहा मेरे जाकिर, मेरे मजलिस के जाकिर सच्चे हैं। मैंने कहा मुबारक हो, यहाँ खड़े हो जाए। एक ने कहा हम अहले हदीस हैं, हमारी जमात का जो बहुत बड़ा रहनुमा है वो सच्चा है। एक साहब आए, उन्होंने कहा हम जमात में जाते हैं, मेरी जमात के जो अमीर हैं वो सच्चे हैं। एक साहब आए सलफ़ी हैं, उन्होंने कहा मेरे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो सच्चे हैं। तो अब तो झगड़ा वही का वही रहा, फिर हम कौन से सच्चों को तलाश करें? जो ईमान और तकवा के बावजूद कुरान कह रहा है उनके साथ हो जाओ, उनके साथ हो जाओ। आप ईमान और तकवा तो समझ रहे हैं ना, इसके साथ इसके रहने के बावजूद कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो हमने देखा, हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह ये सच्चा कौन है? कहा सच्चा वही है कि जब मैं रातों रात शबे असरा होकर वापिस आया, सुबह लोग इनकार कर रहे थे, मगर जो आकर अब बढ़कर कहता है कि नहीं नहीं, हुजूर जब कह रहे हैं कि रातों रात मैं अल्लाह से मिलकर आया तो वो अबू बकर सिद्दीक है, सच्चा है, तो अबू बकर सिद्दीक के साथ हो जाओ। हमने हुजूर से पूछा कि सच्चा कौन है अबू बकर के बाद? तो हुजूर ने फरमाया जिसकी राय पर कुरान की आयत उतर जाए, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जिसकी राय पर कुरान उतरे वो हजरत उमर फारूक सच्चे हैं, फारूक आजम के साथ हो जाओ। हमने हुजूर से पूछा कि हुजूर उनके बाद सच्चा कौन है? तो कहा जिसकी शहादत का खून कुरान की आयत पर गिरे, जो तीसरा खलीफा हो, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। इनके बाद सच्चा कौन? तो हुजूर ने
सच्चा है, सच्चे के साथ हो जाओ। हमने नबी से पूछा अली के बाद सच्चा कौन, तो कहा मन अहब्ब हुसैना फक़द अहब्बनी, जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। करबला में उसके खिलाफ 22,000 नहीं बल्कि 22 लाख 22 करोड़ आ जाए, पूरी दुनिया के लोग आ जाए, मगर करबला की धरती पर कोई सच्चा है तो वो मेरा नवासा और हमारा इमाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रसूल, नारे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच कभी दबता नहीं, चाहे कितनी सदियां बीत जाएं, वो अपना रंग दिखा के रहता है। इमाम आली मकाम की गर्दन कट गई, तहे तेज कर लिया गया। एक शख्स ने कहा हम हसिब्त अन्ना असहाबल कहफी व रकीम कानून मिन आयातीना अजबा। उसने सरे इमाम आली मकाम को देखकर उसने कहा कि वो असहाबे कहफ का किस्सा बड़ा अजीब है। इमाम हुसैन ने फौरन एक आयत की तिलावत की, अम हसिब्त अन्ना असहाबल कहफी व रकीम कानून मिन आयातीना अजबा। असहाबे कहफ से ज्यादा अजीब तो ये किस्सा। अरे वो किस्सा अजीब नहीं कि 3 सदियों तक चंद औलिया अल्लाह गार में सोते रहे, वो ज्यादा अजीब नहीं। उससे ज्यादा अजीब ये है कि जिसके नाना का लोग कलमा पढ़ रहे थे उसी के नवासे को कत्ल कर दिया। तो सच कभी दबता नहीं, वो निखर कर सामने आता है। तो सच उसे कहते हैं जिसकी गर्दन तहे तेग है। तो कुरान ने कहा ऐ ईमान वालों, तकवा वालों, इमाम हुसैन के साथ हो जाओ। सच सच कभी छिपता नहीं। एक छोटा सा बच्चा अपने घर से निकला और वो बगदाद पहुंचता है। लोगों ने धुतकार दिया, उसकी बुलंदी, उसकी शोहरत और उसकी जो तशहीर और प्रचार जो एक आफाक में गूंजने लगी, तो लोगों का पेट खराब होने लगा, तबीयत खराब होने लगी। लोगों ने धुतकारना शुरू किया, दुकान से भगाया, मकान से भगाया। उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और वो दरियाए दजला के किनारे घास खाकर अफ्तार करता और उसका पानी पीकर वो अपनी जिंदगी गुजारता रहा। बहुत साल बीत गया। एक वक्त आया जब उसकी विलायत के रंग में जोश मारा, हर तरफ उसकी विलायत का प्रचार हुआ। उलमा को उलमा बड़ी भी उसकी बारगाह में आने लगे। तो देखते ही देखते उस मर्द अहम ने फरमाया कदमी हाज़री अला रक़बती कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा कदम हर सच्चे की गर्दन पर। उनके बाद क़यामत तक इमाम मेहदी को छोड़कर सारे सच्चों की गर्दन पर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का कदम। तो सच कभी छिपता नहीं, सच कभी मरता नहीं। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओगे। सच का हाल ये है कि सच बॉडीगार्ड नहीं रखते, सच को अपनी जान की परवाह नहीं होती, जायदाद खानदान की परवाह नहीं करते। वो दीन के नाम पर जब निकलते हैं तो संजर से निकलकर बंजर में आते हैं और आकर बादशाह वक्त सल्तनत वक्त से उनका टकराव हो जाता है। याद रखो, अगर सच है और सच के खिलाफ बादशाह भी आ जाए तो मिटना बादशाह को है, सच को नहीं। तो अल्लाह ने कहा वकूनू मअस-सादिकीन। आज तुम देखो वो बादशाह तो मिट गए, न जाने कितने बादशाह जो उनके दुश्मन थे खत्म हो गए, लेकिन आज भी मोइनुद्दीन का नाम वैसे ही चमक रहा है। क्या पता चला कि आज के दौर में अगर तुम्हें सच देखना हो तो मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ हो जाओ। सच कभी दबता नहीं। एक शख्स आप देखें, गौर फरमाएं, वकूनू मअस-सादिकीन,
मैं वो झगड़ा मिटाना चाहता हूँ जो खामखा झूठों को लोगों ने सच्चा बना रखा है, झूठों को सच्चा बना रखा है। इनसे मेरी रोजी रोटी है, आप ही सच्चे। यही सियासत में बड़ा रोब रखते हैं, आप ही सच्चे। मार्केट में घूम घूम कर गीत गाई जा रही है सूदखोरों की, शराब की भट्टियां जो गरम किए हुए हैं उनकी लोग गीत गा रहे हैं, आप ही सच्चे। ये क्या, तुम्हारा रोजगार तुम्हें मुबारक, मगर सच को झूठ ना बनाओ, झूठ को सच ना बनाओ, ये जुल्म है। क्या है? जुल्म है। तो देखें, ये जिगर सच के अंदर है कि बादशाह हो, सल्तनत हो और अपने कदमों से ठोकर मारे और दुनिया उसे तारिकुल सल्तनत कहे, सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, तो वो सच्चे हैं। कुरान ने कहा मखदूम अशरफ के साथ हो जाओ, मखदूम अशरफ के साथ हो जाओ। 12 मौज़ात के जमींदार हजरत मखदूम अबुल गौस गरम दीवान से कहा गया, हुजूर आप जमींदारी का मामला देखा करें, तो आपने एक ठंडी आह ली और कहा फकीर दरवेश खुद हिसाब में है, दूसरों से क्या हिसाब लेगा। आप जमींदारी को छोड़कर जंगल में आते हैं। लोगों ने कहा कि अगर आप अल्लाह के वली हैं, अगर आप गरम दीवान हैं, तो कोई करामत दिखाएं। कलंदरों की भीड़ आ गई और बहुत सारे दरवेश और सूफिया आ गए। आपने खादिम से कहा कि ऐसा है कि आटा गूंद लो और जब वो आएंगे तो मैं तुम्हें हुक्म दूंगा, वैसा ही कर लेना। सालन बन चुका है, आटा गूंद लिया गया है। आते ही आपने खादिम से कहा कि इस गूंदे हुए आटे को फकीर की पीठ पर रख दे और रखना तो फौरन पलट देना, वरना ये आटा चल जाएगा। इतना कहना था, उस खादिम ने ऐसे ही अमल किया। रोटी पलटते पलटते चल गई और वलियों ने दरवेशों ने देखा और देख कर कहा आपको किसी मौलवी ने गरम दीवान का लक़ब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने खुद दिया है। आप रहमान के महबूब हैं, आप रहमान के महबूब हैं। याद रखें, तो सादिक वो होता है, सच्चा वो होता है कि जिसे किसी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, वो जंगल में भी चला जाए, लोग भीड़ लगाते हुए उसके पास पहुंच जाया करते हैं। तो सच्चों के साथ हो जाओ, पावर न देखा करो, ये दुनियावी नामो नबूद, ये रिया, ये मामूली सा दिखावा, ये पैसों के जोर पर तुम बिखर न जाया करो। याद रखो, अगर ईमान और तक़वा है तो तुम्हें सच्चों की जरूरत पड़ेगी। शहंशाह नक्शबंद के साथ हो जाओ, शहंशाह सोहरवर्द के साथ हो जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो जाओ, हजरत गरीब नवाज सरकार के साथ हो जाओ। याद रखें, एक बकरी खेत के किनारे जा रही है, आपने देखा, फौरन खेत वाले से कहा कि देखिए आपके खेत में बकरी जा रही है, तो वो देखकर फौरन उसे भगा देगा। लेकिन इत्तिफाक से वो बकरी आप ही की हो, आप ही की हो, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि देखिए बकरी खेत में जा रही है, बल्कि दौड़कर खुद बकरी को पकड़ लेंगे और उसे बचा लेंगे। इसी तरह बंदे आजाद हैं, और अगर अपनी गर्दन में अब्दुल कादिर जिलानी का पट्टा डाल लें, गरीब नवाज की निस्बत डाल लें, तो ये बुजुर्गाने दीन जब आप भटकेंगे, हराम की तरफ जाना चाहेंगे, गैर शरई काम करना चाहेंगे, नफ्स के शिकार होना चाहेंगे, ख्वाहिशात में गिरफ्तार होना चाहे, तो फौरन ये निस्बती अल्लाह के वली आपको खींच लेंगे और कहेंगे तू आजाद नहीं है, तू किसी और का गुलाम नहीं, गरीब नवाज का गुलाम है, अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम है। तो इस निस्बत को पहचाने और सच्चों के साथ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस महफिल को कबूल फरमाए, और बच्चे का अकीक़ा हुआ, अल्लाह उसके उम्र में दराजगी दे और उसे सेहत दे और उसे इल्म दीन हुजूर की शरीयत पढ़ने की उसे तौफीक अता फरमाए। और जितने अहबाब यहाँ शिरकत किए हुए हैं, सभी की शिरकत को अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजे। अस्तगफिरुल्लाह 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 वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम।